हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ का रिवीजन वीडियो फॉर द नवंबर 2023 ओनली फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स। फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज। So without wasting our time, I will tell you how I will teach you in which sequence the sections. So I will start with the chapter number one, that is the appointment and qualification of a director. So let's start. So in this sequence, I will study you. That is, first of all, section number 149, I will teach you, and then thereafter 150 and then 151. I will make the two part for the chapter one. Okay, 152, 160, and 161. In this sequence, I will tell you how to revise the entire thing. And then 160, 161, 162, आपने यहाँ देखा होगा मैंने स्किप कर दिए हैं उन सेक्शंस को, मैं लास्ट में पिकअप करूंगी। 163, 164. So in a first part we will cover till the 161 section. Okay, so without wasting our time, we are starting this video. Let's start. Okay, so I am assuming that you have completed your all the classes, and of course, if you have completed your one revision, that is good enough for you. देखिए कॉर्पोरेट लॉ को जितना रिवाइज करें उतना ही कम है, बट यस वी विल डू इट। हम इसको फुल रिवाइज करेंगे एंड वी विल सिक्योर द एग्जामिशन इन दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और मैं रिवीजन सारे चैप्टर्स का, ऑल द चैप्टर्स आई विल लाइक टीच यू फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि कुछ स्टूडेंट्स के पास किसी फैकल्टी की बुक है। आईसीआई इज ओनली द वे टू टीच ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज एंड मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप भी अपनी स्टडी मेट से ही पढ़ाई करें, हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले शेड्यूल में बताया था, सबसे पहले मैं सेक्शन नंबर 149 आई विल कवर। Okay, let's start with the section number 149. Company to have a board of directors, section number 149. Students, I'm expecting that corporate law में आप sections याद करके जाइए। सब sections और rules अगर नहीं याद हो पा रहे हैं, no issue। फॉर्म नंबर्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, मैं बता दूंगी। केस लॉज भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, वो भी मैं बता दूंगी। लेकिन यस, आपको सेक्शंस याद करने चाहिए, एंड आई विल टेल यू फॉर अ entire director chapters, that is starting from the section 149, and for this chapter 172 you have to learn each and every sections, और हर sections को आपको पता होना चाहिए। Okay, let's start without wasting our time. Company to have a board of directors, section number 149। सबसे पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए एक कंपनी में, विच इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1। तो एवरी कंपनी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मिनिमम डायरेक्टर। हर कंपनी में, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो शुड है, पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर, एंड इफ इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी देयर शुड बी अ मिनिमम 3 डायरेक्टर। इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी देयर शुड बी अ 1 डायरेक्टर। So this is all about the minimum criteria. Company should have a director. In case of a public company, there should be a minimum 3 director. In case of a private company, there should be a 2 director. In case of a 1 person company, there should be a 1 director. And this is the minimum criteria. Now maximum. What is the maximum number of the director company should have? That is the 15. In case of a public company, private company, but except the 1 person company. 1 person company should have a 1 director. And also for a 1 person company, that is the 1 director, they may have a more than 1 director, but minimum they should have a 1 director. Maximum number of directors. If company wants to keep more than 15 directors, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। So this is all about the summary. This is the summary. Yes, this is the summary. So एक मिनट में इसको इरेज कर लेती हूँ। So yes, start. In a minimum
एंड दैट इज द मैक्सिमम क्राइटेरिया। ठीक है, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर, ओपीसी में 1 डायरेक्टर, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं कि इन केसों में हमें क्या करना, हमें एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी चाहती है मोर देन 15 डायरेक्टर्स को रखना, सो वो रख सकती है। ठीक है, in case of the government company is exempted, but there is a two condition which company should fulfill, that is company को first of all that की company exemption कंपनी इज एग्जेम्प्टेड किससे, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 बी, जो कि कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 डायरेक्टर्स, और फ्रॉम द एप्लीकेशन दैट मोर देन 15 डायरेक्टर के लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड, बट गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट ना करा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल दैट इज द अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। अगर ये कंपनी ने मतलब डिफॉल्ट नहीं करा है तो कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट कर सकती है मोर देन 15 डायरेक्टर विदाउट पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द फर्दर पार्ट, दैट इज द वुमेन डायरेक्टर। फर्स्ट पहले मैं इसको क्लेम कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, इफ यू नीड कि मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बैंक पे भी क्वेश्चन वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो देन आई विल मेक द वीडियो। ओके, तो देयर इज अ वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर, हर कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, इसमें जैसे कि रूल प्रेस्क्राइब करा हुआ है। ठीक है, जरूरत नहीं है सेकंड प्रोवाइजो टू द सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, बट यू शुड लर्न इट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना चाहिए। सबसे पहले हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अदर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, इट मींस वुमेन डायरेक्टर किन किन कंपनी में होना चाहिए। सबसे पहले हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और अदर पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। अगर मान लो 100 करोड़ है कैपिटल, तो भी कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड हम ये पेड अप शेयर कैपिटल की अमाउंट और टर्नओवर की अमाउंट कब लेंगे, जिस दिन वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है उससे लास्ट जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो फिगर आ रही होगी, वी हैव टू कंसिडर दैट फिगर। ओके, सो नाउ गो टू दी अनदर पार्ट, दैट इज द, अगर मान लो कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो क्या होगा। इन केस ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तब क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लो कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई है, अब इस केस में क्या करेंगे, कॉम्प्लाइंसेस बाय द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। A company which has been incorporated under the Act and is covered by the provisions require the appointment of a woman director shall comply with such provision within the period of 6 months from the date of its incorporation। मतलब सपोज दैट अगर कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके विद इन अ 6 मंथ उस कंपनी को, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं, उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर जा रही है, टर्नओवर जा रही है, दोनों में से एक, नॉट बोथ, हाँ, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो 6 मंथ के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ दे हैव टू अपॉइंट द वुमेन डायरेक्टर। ओके, फाइलिंग ऑफ इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर। अब इंटरमीडिएट वैकेंसी कैसे फुलफिल करी जाएगी, इंटरमीडिएट वैकेंसी फुलफिल कैसे करी जाएगी, बोर्ड के द्वारा फुलफिल करी जाएगी at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। कितने टाइम में, आप इसको सिंपल से ऐसे याद रखो, सपोज दैट आज किसी वुमेन ने कंपनी को छोड़ा, आज से, अब जो इस आज जिसे छोड़ा कंपनी को, तो आने वाली जो बोर्ड मीटिंग है या फिर आज से 3 महीने, जो दोनों में से जो भी लेटर डेट होगी उस डेट तक एक वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। ओके,
यू कैन कंसिडर दिस एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल है ये, आप एक बार इसको स्टडी कर लेना, अगर डाउट आता है तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम रेजिडेंस डायरेक्टर के बारे में। नाउ स्टार्ट विद रेजिडेंट डायरेक्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जो कि एक डायरेक्टर जो स्टे करा हो इंडिया में फॉर अ टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182, मतलब कितने दिन का, 182 दिन वो कंपनी में इंडिया में रहा हो। एक ऐसा रेजिडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में होना चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी तो ये प्रोविजन क्या लगेगा, प्रोपोर्शनेटली लगेगा। सपोज दैट कंपनी को 182 दिन हुए हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हुए, तो उसका आप कर दीजिए अकॉर्डिंगली उतने दिन एक डायरेक्टर इंडिया में रहा हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि बहुत मतलब लाइक वाइड प्रोविजन है। आई विल टेल यू इंटरेस्टेड डायरेक्टर, आई विल एक्सप्लेन यू एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, आई विल टेल यू एंड चलो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बता ही देते हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी को ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी को और ऑपरेट करना। होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में आते हैं। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, वो लोग कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो कंपनी को पॉलिसी फ्रेम करना, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, जैसे नॉमिनी डायरेक्टर हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, ये सब कहाँ कवर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दे विल बी कंसिडर एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। Okay, so now we will start with the section 149 subsection 6, that is the major provisions. Okay, let's start. I think it is on a page number, let me check, that is uh 8 minute, 149 students. See, I will study you, मैं रिवाइज पूरा मतलब लाइक 149 से 172 तक एंटायर रिवीजन कराऊंगी, बट एक सीक्वेंस में। मैंने वो सीक्वेंस भी बनाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 1 मिनट, just a minute students, ये रहा। I think this is the biggest, okay, let's start. Independent director, okay, पहले मैं ये full entire that I will cleaning out, just a minute, okay, women independent director. Okay, let's start with section 149 subsection 4. अगर लाइक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है सबसेक्शन रिवाइज करने में, they can start with the only section not subsections, but they should have a keep in mind कि हाँ मेरा ये सेक्शन इससे बिलोंग करता है, ये सेक्शन इससे बिलोंग करता है, पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी में और अदर पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहले हर लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैविंग अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने लिस्टेड कंपनी में, 1/3 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 1/3 हम कंसिडर करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी। अदर पब्लिक कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी कौन कौन सी है, आइए पहले हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि अदर पब्लिक कंपनी में कौन कौन फॉलो हुआ। ये रहा, रूल्स में स्पेसिफाई करा गया है कि विच कंपनीज, ओके, all the public companies having the paid up share capital of 10 करोड़ और उससे ज्यादा। ठीक है, all such public companies having a turnover of 100 crore
और उससे ज्यादा। All such public company which have in aggregate outstanding loan, debentures, deposit exceeding the 50 crore, अगर इससे ज्यादा है तो उन कंपनीज को एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरिया है उतना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे। तो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी को टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 1/3 का क्या करना होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे। अदर पब्लिक कंपनी में कौन कौन आएंगे, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो वी हैव टू fulfill that criteria of having the independent director. First of all, having the paid up share capital of 10 crore और उससे ज्यादा, और having the turnover of 100 crore or more. All such public companies having in aggregate मतलब total outstanding loan, debentures, deposit exceeding the 50 crore या उससे ज्यादा। ठीक है, और ये अमाउंट हम किस डेट को देखेंगे, सपोज दैट हम आज अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे हम उस डेट को देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सपोज दैट कोई लिस्टेड कंपनी है और उस पर ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन लग रहे हैं तो उनके ऊपर सेबी के वो प्रोविजंस लगेंगे, ना कि यहाँ कंपनीज एक्ट के। तो दे विल ओवरराइड ऑलवेज द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ मिनिमम 3 जैसे कि अगर सेबी में लिखा हुआ है मिनिमम ऑडिट कमेटी के मिनिमम 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए मेजोरिटी के साथ। तो अब हम यहाँ के लिए लेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नंबर, हम उसका फर्दर सॉरी फर्दर जस्ट अ मिनट। तो फर्दर हम सेक्शन 177 सबसेक्शन 2 के नंबर्स कंसिडर करेंगे, ना कि हम कंपनीज एक्ट 2013 के नंबर्स कंसिडर करेंगे। तो इन दिस केस एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। अदर पब्लिक कंपनी को एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा अगर वो इनमें से एक क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं। लिस्टेड कंपनी में 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, अदर पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे। बट अगर मान लो किसी कंपनी पे सेबी या सेक्शन 177(2) ऑफ ऑडिट कमेटी ने बोल दिया कि हाँ मिनिमम 3, तो वहां का वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, ना कि कंपनी का। So that particular act always overriding the Companies Act 2013. अब intermediate vacancy of the independent director कैसे फुलफिल करी जाएगी, तो इंटरमीडिएट वैकेंसी फाइल करी जाएगी बोर्ड के द्वारा। कैसे, जैसे आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी अराइज हुई, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और आज से 3 months विच एवर इज लेटर, जो डेट आएगी उस डेट के विद इन हमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, विच एवर इज लेटर। यू कैन सी द प्रोविजन। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ द ड्यूरेशन। लेट्स कंटिन्यू विद द अदर प्रोविजन आल्सो क्लैरिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो अमाउंट लेने के लिए देख लो, इसमें यही लिखा हुआ है। दिस इज कि हम पेड अप शेयर कैपिटल किस डेट की लेंगे, जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम उस डेट की अमाउंट लेके चलेंगे। अब लेट्स सी एग्जेम्पशन, किस किस कंपनी पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। सो हियर स्पेसिफाई इन अ रूल दैट इज जॉइंट वेंचर, wholly owned subsidiary, dormant company which is defined in a section 455 of the Companies Act. Okay, unlisted public company कवर नहीं होंगी इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट वेंचर, wholly owned subsidiary, dormant company जो कि स्पेसिफाई करी गई है अंडर सेक्शन 455। तो इन कंपनीज पे हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं इम्प्लाई होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द अनदर प्रोविजन दैट इज, देखो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉट इन अ थ्योरेटिकल बट आल्सो इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सो यू शुड स्टडी विद दिस सिंसियरिटी एंड यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स। इफ यू आर, अगर आप थ्योरी को एक बार रिवाइज कर रहे हो एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको मतलब लॉन्ग टर्म में रिटेन कर लोगे, दैट इज योर बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। यू हैव टू गो थ्रू the theory on a daily basis, not like 5 to 6 hours, not having the capacity, but at least
you should give 2 or 3 hours daily. Okay, सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी। एक बार आइए समराइज करते हैं हम प्रोविजन को। मेरे साथ वहीं बैठे बैठे सब लोग रिवाइज करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे? हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, बट एटलीस्ट कितना, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे। अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी कौन कौन सी थी? इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वी शुड हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन कौन सी कंडीशन? 10 करोड़ और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और एग्रीगेट किसका? लोन, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट 50 करोड़। ठीक है, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे। लेकिन अगर मान लो ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन लग रहा है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो हायर हो रही है, सो वी हैव टू लाइक अप्लाई दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, नॉट द कंपनीज एक्ट। ओके, और किस किस पे नहीं लगेगी? ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, दैट इज द जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड कंपनी और डोरमेंट कंपनी जो कि 455 में डिफाइन करा गया है, उन पर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर सपोज दैट अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये अगर लग रहा है किसी को प्रोविजन, तो हाँ वी विल इम्प्लाई दिस। बट अगर मान लो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें अगर कॉन्टिन्यूसली 3 साल मतलब लाइक कॉन्जिक्यूटिवली प्रीवियस 3 ईयर से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, कौन सी कंडीशन? पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, बोरोइंग्स, अगर इनकी कोई भी कंडीशन पिछले 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, वी डोंट रिक्वायर टू अपॉइंट एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, गॉट माय पॉइंट? सो नाउ स्टार्ट विद द अनदर प्रोविजन, दैट इज हु कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया कि किस कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के प्रोविजन अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। अब हमें देखना है कि अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। वी हैव टू सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।